Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now we will do exercise. Exercise number A. Fill in the blanks with the correct answers. Number 1. The coastal regions in India experience dash types of climate. Number 1. Continental. B. Equable. Number 3. Extreme cold. Number D. Dry. Answer is equable. Number 2. The retreating southwest monsoon season lasts from A. February to March, B. June to August, C. October to November, D. December to January. Answer is October to November. The retreating southwest monsoon season lasted from October to November. Number 3. Based on the amount of rainfall, there are dash type of forest. A. 5, B. 3, C. 2, D. 4. Answer is A. 5. Based on the amount of rainfall, there are 5 type of forest. Number 4. Forests are important as they prevent dash. A. Soil erosion. B. Rainfall. C. Urbanization. D. Depletion. Answer is A. Soil erosion. Forests are important as they prevent soil erosion. Number 5. The biodiversity park in India are more in the dash. Answer: Eastern Ghat. B. Dachigam. C. Northern Plain. D. Western Ghat. Answer is Western Ghat. The biodiversity park in India are more in the Western Ghat. Now, exercise B. Name the following. Number 1. 2 common plants of thorn forest. Babul, kikar. Number 2. The main animal of the tropical deciduous forest. Answer is Asiatic elephant. Number 3. The main product of the tropical evergreen forest. Answer: rosewood, ebony, mahogany. Number 4. 2 local wind in India. Answer: Andhi and. Now exercise C. Give geographical reason for the following. Number 1. The Deccan Plateau is relatively warmer than the northern plains during winter. Now नॉर्दर्न प्लेन मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में है और दक्कन प्लेटूज है वो सेंटर ऑफ इंडिया में है, तो वो वार्मर है। दक्कन प्लेटू है वो ज़्यादा गर्म है किसके कंपैरिजन में? नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि नॉर्थ में जो मैदान है उससे वो ज़्यादा गर्म है। क्यों? आंसर: एज दक्कन प्लेटू लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर, ड्यू टू दैट रीज़न the Deccan Plateau is relatively warmer than the northern plain during winter। क्योंकि दक्कन प्लेटू है वो इक्वेटर के नज़दीक है और इक्वेटर है वो जो है टॉररिड जोन में आता है, जो गर्म प्रदेश है उसमें आता है, इसलिए दक्कन प्लेटू भी इक्वेटर के पास है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है नॉर्दर्न प्लेन के कंपैरिजन में। ओके, now question number 2. Tamil Nadu does not get rain during the southwest monsoon season। तो जो साउथ से वेस्ट की तरफ जो हवा चलती है उसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। मॉनसून सीज़न में तमिलनाडु स्टेट में बारिश नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? आंसर:
The southwest monsoon season start in June and lasted till September. यानी कि ये मॉनसून सीज़न है वो जून से लेकर सितंबर तक चलती है. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय क्या होता है, द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. और जो दोनों तरफ जो ओशंस हैं, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से जो हवा चलती है समुंदर की तरफ से टूवर्ड्स द लैंड, मतलब ज़मीन की तरफ. ओके, तो ऐसे समय में जो समुंदर के ऊपर से जो हवा आती है वो मॉइस्चर वाली होती है, वेट होती है, और जो क्लाउड्स होते हैं उनको वो कंडेंस कर देती है, मतलब उसको ठंडा कर देती है और फिर बारिश गिरनी शुरू होती है. तो ऐसा होता है कि जो दोनों तरफ से हवाएं आती है वो बारिश करती है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल एक्सेप्ट तमिलनाडु. मगर तमिलनाडु में बारिश उस समय नहीं गिर पाती है, क्योंकि जो बादल बरसते बरसते जब तक तमिलनाडु में पहुंचते हैं, तमिलनाडु एकदम साउथ में स्टेट है, केरला और तमिलनाडु. ओके, मगर तमिलनाडु है वो ईस्ट की तरफ है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो होते हैं वो बादल बरस चुके होते हैं और उसमें वेटनेस नहीं होता है, वो ड्राई हो जाते हैं. बाय द टाइम द विंड फ्रॉम अरेबियन सी रीचेस तमिलनाडु कोस्ट इट बिकम ऑलमोस्ट ड्राई. तो उसमें से पानी बरस चुका होता है. द मानसून विंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रन पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु कॉजिंग वेरी लेस रेन. और इस तरह से वहाँ पे नहीं गिरता है, मगर फिर बे ऑफ बंगाल वो भी ईस्ट में है और तमिलनाडु है वो भी ईस्ट में है. तो जो बे ऑफ बंगाल से थोड़ी सी हवा वापस आती है, रिट्रीट, आपने देखी 5वां तरह की जो हवा थी, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, बराबर. तो वही हवा जब वापस रिटर्न होती है तो उस समय बे ऑफ बंगाल की हवा वापस रिट्रीट होती है, उस समय थोड़ी तमिलनाडु में ये बारिश करती है. इसलिए कहते हैं कि तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून सीज़न आता है और पूरी इंडिया में बारिश होता है, तब यहाँ पे बारिश नहीं होती. नाउ एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन नंबर 1. आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द थ्रोन फॉरेस्ट फाउंड. इंडिया के कौन से पार्ट में थ्रोन यानी कि कांटे वाले जंगल पाए जाते हैं. थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. 50 सेंटीमीटर से भी जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे इस तरह के कांटे वाले जंगल पाए जाते हैं. फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप आर स्कैटर्ड अराउंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. और वेस्ट की तरफ ही डेजर्ट है, इसलिए वेस्ट में ये जंगल पाए जाते हैं. तो कुछ हिस्सा वेस्ट का और कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जहाँ पे पंजाब आता है वहाँ पर भी ये जंगल देखने को मिलते हैं. विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ड्रायर पार्ट ऑफ पंजाब एंड गुजरात. तो हमें थ्रोन फॉरेस्ट है वो राजस्थान, पंजाब का कुछ पार्ट और गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं. नंबर 2. What are the tidal forests in the Ganga Brahmaputra delta called? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, वहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है. आंसर, टाइडल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव्स फॉरेस्ट मीन्स ऑन ए शोर. मैंग्रोव्स मतलब जो समुद्र के किनारे पर पौधे पेड़ उगते हैं उनको मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कहते हैं, उनको ही टाइडल फॉरेस्ट भी कहा है. इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
The Sundari tree is the most important tree. So this forest is also known as Sundarban forest. और तो और यहाँ पे जो टाइडल फॉरेस्ट है उसमें सुंदरी नाम का पेड़ है वो बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, इसलिए इस फॉरेस्ट को, टाइडल फॉरेस्ट को सुंदरबन फॉरेस्ट भी कहा गया है. नाउ एक्सरसाइज ई. आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल. एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन सी बातें असर करती है. आंसर. द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर नंबर 1 latitudes, number 2 altitudes, height, and number 3 distance from the sea. Okay, so number 1 latitudes. The Tropic of Cancer divide the country into 2 tropical zones and the temperate zone. Number 2 altitude means height. Temperature decrease with height. Place high up the mountains are colder than the plains. For example, Shimla is cooler than Chandigarh. क्योंकि शिमला है वो हाइट पर है, तो जो भी चीज़ें, जो भी जगह है हाइट पर होगी वहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा होगा, और जो नीचे ज़मीन पे आसपास होगा वो गर्म होगा. तो हाइट भी करता है इन्फ्लुएंस क्लाइमेट को बनाने में. नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से जितना दूर होंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, और समुद्र के जितना हम नज़दीक होंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा. All places near the sea coast have more equable climates than places in the interior. मतलब कि जो अंदर के भाग में होगी, ज़मीन से अंदर की तरफ होगा, समुद्र के किनारे से अंदर की तरफ जो भी होगी जगह वहाँ पे होगा आपको ठंडक मिलेगी, और समुद्र के किनारे पर इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई हैज़ इक्वेबल क्लाइमेट. मुंबई है वो समुद्र के किनारे पर है, वाइल दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, और दिल्ली है वो समुद्र से दूर है, तो वहाँ पे ठंडी के सीज़न में ठंडी भी ज़्यादा होगी और गर्मी के सीज़न में गर्मी भी ज़्यादा होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. आंसर. इंडिया हैज़ ओवर 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. तो जैसे कि आपने रीडिंग के टाइम ही देखा है कि इंडिया में 500 तरह की वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, और 1200 जितने टाइप के बर्ड्स हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्पीसीज ऑफ फिश एज वेल. और तो और कई तरह के रेप्टाइल्स भी हैं और कई तरह की फिशेस भी हैं. डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. और जिस तरह का क्लाइमेट है उस तरह के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लायन आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में लायन देखने को मिलते हैं. इसी तरह से टाइगर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द सुंदरबन, यानी कि ईस्ट की तरफ जो सुंदरबन है वहाँ पे हमें टाइगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो इसी तरह से एलिफेंट आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. तो केरला और कर्नाटका जो साउथ की तरफ है इंडिया के, वहाँ पे एलिफेंट हमें देखने को मिलते हैं. 1 हॉर्न राइनोसिस इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, और असम स्टेट है वहाँ पे हमको 1 हॉर्न, एक सींग का गैंडा भी हमें देखने को मिलता है. तो कैमल आर फाउंड इन द थार डेजर्ट, और डेजर्ट में हमें कैमल देखने को मिलते हैं. और रन ऑफ कच्छ है जो, वो भी एक डेजर्ट का ही पार्ट है, मगर वो इंडिया गुजरात में है. तो वहाँ पे कैमल के साथ साथ हमें वाइल्ड एस, जंगली गधे भी देखने को मिलते हैं. वाइल्ड एस आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ.
इसी तरह से हिमालय रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड एंड बियर आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। तो इस तरह से अलग अलग रीजन के अलग अलग एनिमल देखने को मिलते हैं। नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मोस्ट टिपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, पत्ते जड़ जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और बारिश के बाद नए पत्ते आते हैं, इसलिए उसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। These forests are found in regions with an annual rainfall of 100 to 200 सेंटीमीटर। और ये जहाँ पे 200 से लेकर या 200 तक, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। We can find such forest in मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इस तरह के जंगल देखने को मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक। और जब ठंड की सीज़न चली जाती है उसके बाद जो है ठंड के कारण इनके पत्ते भी जड़ जाते हैं 2 महीने के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए। In order to survive the dry season, तो विंटर बहुत ही सूखी होती है, इसलिए जो है वो गिर जाते हैं और उसके बाद बारिश आने के बाद वापस पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। Important trees are seal, teak and पीपल। तो इनके मेन जो ट्रीज़ हैं वो हैं साल, टिक एंड